Hi friends, welcome to Cricket Caviar and we have a special quiz today. An ODI quiz because मैं देख रहा हूँ कि फैंस बहुत डिमोटिवेटेड है ओडीआई क्रिकेट को लेके. न्यूजीलैंड में जैसा बकवास सीरीज हुआ है, 2 मैच में बारिश, एक मैच में इंडिया हार गई. मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो जाए बिफोर बांग्लादेश सीरीज एंड दिस कैन बी इंटरेस्टिंग सीरीज. और अभी फाइनली नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी आ रहा है 50-50 का, तो वी हैव टू कीप द जोश गोइंग अगेन. So, and let's try to have a quiz today and see who will win this ODI quiz. So most of the questions that I'll ask today is basically from 1999 से 2011 ईयर के पीरियड में है, because उस टाइम पे ODI क्रिकेट की बात ही कुछ और थी. सहवाग, युवराज, धोनी. क्या कहना चाहेंगे guys? It was different. Sachin and Ganguly used to open, and then Sehwag came, and he was next level. We used to enjoy Sehwag's batting more than Sachin's. There was a period where I used to enjoy his batting, and actually, बहुत different रहता था उसका. Yeah, and we had a very good team, man. और वो हरभजन ज़हीर, वो सब लोग भी bowling भी, even though like they were not the best bowlers, but it was a very balanced side उस टाइम पे जब इंडिया की होती थी. and we didn't had a sixth bowler, but still we used to win those matches, crunch games, and yeah, it was very different. So let's start this quiz, guys. I'm very happy to invite Ankur, Shreyans, and Vishnu to this quiz. And let me share my screen. Oh, you're sharing a screen? Okay. Yeah, actually. Oh, you came with. I would like to share my screen. Can you see my screen now? Yeah. Okay, guys. So the first question is, Sachin के ODI centuries में, where has he scored most of his ODI centuries? And there is also a part B, where has Virat Kohli scored most of his ODI centuries? You can either give me the name of the ground or the venue, and I will give partial marks if you either guess Sachin's or Virat's either. Can you repeat the question once? Where did Sachin score most of his ODI centuries? Which ground? सचिन के 49 ODI सेंचुरीज में सबसे ज्यादा उसने कौन से वेन्यू पे बनाए हैं? एंड सिमिलरली विराट के 43 ODI सेंचुरीज हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कौन से वेन्यू पे बनाए, एक पर्टिकुलर वेन्यू पे? So both are same venues or both are different questions? They can be same venue or different. Okay, हाँ, so they can be different also, no? Okay. If everyone agrees, we can also give some extra hints. तो और अगर कोई भी एक डिक्लाइन करेगा तो आई वोंट गिव दैट एक्स्ट्रा हिंट. Only in ODIs, right? Yeah, only ODIs. This quiz is just ODIs. So that's why I said it's 49 centuries सचिन के ODI में है उसमें से, और 43 विराट के हैं. चलो guys, 30 seconds are up. Can please show your answers. Okay, Ankur, I've seen your answer. Okay, कोहली का नहीं लिखा विष्णु? No, not yet. Okay. श्रेयांश भाई अब आंसर लिख रहे हैं. दिख रहा है क्या मेरा आंसर? बड़ा लिखो तुम, बहुत छोटा लिख रहे हो. दूर है. क्या लिखा आपने वैसे? मैंने तो ग्वालियर सचिन का और वाइजैग कोहली का. ओके, तो ग्वालियर. आप तीनों के आंसर्स इनकरेक्ट है, तो कोई एक पास लेना चाहेगा, एक और सेकंड? हिंट दे दो यार, हिंट बेटर रहेगी मेरे हिसाब से. नहीं, हिंट तो पहले ही मिलती है फर्स्ट टाइम में. अच्छा, at least give us whether it's in India or outside. It's outside. Okay. For both of them. For both of them. चलो अभी. Is it in South Africa, Cape Town? नहीं इतना गैस नहीं अभी. let me show you. How can you guys forget? नहीं, मैंने डाला है भाई. एक मिनट रुको, देखो. शारजा में सोचा था यार सचिन. यार मैंने शारजा लिखा है भाई, देखो तुम्हारे बोलने से पहले तुमने जैसे हिंदी मैंने लिखा था.
अरे यार, I thought it's Sharjah, but then मैंने I लिखा है thought भाई कि शारजा। then चलो later ठीक he है, didn't श्रेयांश play भाई को those पार्शियल matches. मार्क्स उसके लिए। हाँ भाई मैंने शारजा लिख दिया था जैसे ही तो या सचिन के शारजा में 7 सेंचुरीज है 49 में से, और आयरॉनिकली 2000 ईयर के बाद वहां पे सचिन खेला भी नहीं है, तो 2000 ईयर Yeah, तक ही उसने वहां पे इतने सेंचुरीज then मार I लिए थे। thought कि नहीं हो सकता है because he didn't play for a while. या बट स्टिल ही डिड, एंड 2 सेंचुरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2 जिम्बाब्वे, 2 श्रीलंका और 1 पाकिस्तान। एंड In विराट कोहली test it, सरप्राइजिंगली ढाका में उसके 4 सेंचुरीज है, और उसका भी सेम स्टोरी है, करियर के 11 सेंचुरीज में से 4 ढाका में थे शुरू में। तो दोनों के करियर के बिगनिंग में एक ग्राउंड को हंट किया है बेसिकली। और एडिलेड में थे उसके 2 सेंचुरीज। वाइजैक किसी ने इंटरेस्टिंग आंसर दिया था फॉर कोहली, राइट? 3 सेंचुरीज थे या वहां पे, तो इट वाज हाँ क्लोज। मैंने दिया था वाइजैक। मैं Adelaide Rika, then I thought कि it's only in test. ओके सो या श्रेयांश भाई को 0.25 मिल जाएगा, हाफ ऑफ हाफ। और उसके साथ लीड ले लेंगे इस पे। ओके सो रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? Yeah. बिल्कुल। तो ये इंडिया बांग्लादेश की सीरीज का मौसम है, तो आई वांट टू आस्क अबाउट इंडिया बांग्लादेश सीरीज से रिलेटेड। तो लास्ट टाइम जब इंडिया ने बांग्लादेश में टूर किया था, तो हु वन दैट सीरीज? अगर स्कोर लाइन दो तो और भी बेटर है, 3 मैच की सीरीज थी। एंड हु वाज द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ दैट सीरीज? ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। सो हु वन द ओडीआई सीरीज व्हेन इंडिया टूर्ड बांग्लादेश लास्ट टाइम, एंड हु वाज द मैन ऑफ द सीरीज इन दैट सीरीज? I don't know the. ओके विष्णु, 10 सेकेंड्स और बचे गाइस। विष्णु ने अभी तक आंसर दे दिया है। मैंने दे दिया, देख लिया मेरा आंसर। आपका दिख नहीं रहा है, बहुत पीछे रखा है यार वो, और लाइट आ रही है एक्चुअली। ओके सो अंकुर को मिलते हैं पूरे पॉइंट्स। विष्णु एंड श्रेयांश भाई का पार्शियली करेक्ट है। यस, बांग्लादेश की इंडिया के अगेंस्ट एकलौती सीरीज विन है वो 2-1, दे वन एक्चुअली। एंड मुस्तफिजुर का डेब्यू था उस सीरीज में। ही पिक्ड 13 विकेट्स इन दैट सीरीज, एंड ही हेल्प बांग्लादेश विन द सीरीज फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया 2-1, और वो भी धोनी जैसे लीडर के सामने। तो इट वाज अ वेरी बिग सीरीज विन फॉर बांग्लादेश। दैट्स व्हाई गाइस, अभी जो सीरीज होने वाली है नेक्स्ट वीक, उसमें कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश एक्चुअली वेरी स्ट्रांग एट होम, स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट। कल से स्टार्ट हो रही है ना सीरीज? या कल से। बट तो या इट वाज पार्शियल भी नहीं मिलेगा क्या? एब्सोल्युटली। पार्शियल मिलेगा क्या मुस्तफिजुर का? या पार्शियल मिलेगा। ओके मुझे भी मिलेगा फिर। या तुझे भी मिलेगा। या गुड जॉब गाइस, एवरीवन गॉट समथिंग इन दिस वन। That was नेक्स्ट। very tough series for India, right? ये वही थी ना Yeah. जिसमें एंड स्टुअर्ट हम लोग बिन्नी ने थर्ड मैच मैच जिताया जीते थे, था। पहले 2 मैच में ही सीरीज खत्म हो गई थी बेसिकली। And Sachin, sorry, Dhoni got banned because of hitting Mustafi. Yeah. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। तो 7 इयर्स के वेट के बाद इंडिया फाइनली पाकिस्तान टूर करने गई थी 2004 में। इसके पहले 97 में दे वेंट, एंड देन वी वेंट इन 2004। तो ओडीआई सीरीज के साथ टूर स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट मैच में इंडिया ने 349 रन्स बनाए थे, एंड टू एवरीवन सरप्राइज पाकिस्तान बैटेड रियली वेल इन रिस्पॉन्स। देयर वाज अ गुड पार्टनरशिप इन द मिडिल ऑर्डर, और ऐसा करते करते पाकिस्तान केम रियली क्लोज। दे नीडेड 9 रन्स इन द लास्ट ओवर, बट India managed to win that match. So my question is, who bowled that last over जिसने इंडिया को वो जीत दिलाई? And second question is, इस मैच में एक ही सेंचुरी लगी थी, who was that centurion? So इंडिया का स्कोर था 349 and पाकिस्तान finished on 343. Who was that bowler जिसने सिर्फ 3 रन्स दिए लास्ट ओवर में? एंड किस प्लेयर ने इस मैच में 100 मारी थी? ये मैच किस किस को याद है बाय द वे? सबको याद है। तो हाँ तो उसमें याद है सचिन ने कैच ने ब्रिलियंट कैच लिया था बिल्कुल भाग के। सचिन ने इंजमाम का लिया था शायद विकेट नहीं ना? नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 वाला नहीं नहीं
नहीं इसमें इंजमाम बोल्ड हुआ था मुरली कार्तिक की बॉल पे, इसमें मोहम्मद कैफ ने लिया था कैच। मैन क्या शुएब मेमोरी है। Hmm. ये आंसर्स दिखाए? या ओके, विष्णु एक बार फिर से आंसर बताना। Inzi and Zaire last over. ओके, ये ले, मैं जीत गया दोनों पॉइंट इसमें तो, आशीष नेहरा और इंजमाम। यस दैट्स एक्चुअली करेक्ट। कैसे याद है भाई? इट अरे वाज ये इंडीड। मैच तो भाई 100 बार देख लिया यार। राहुल द्रविड़ 99 बनाया था 104 बॉलों में इस मैच में। या राहुल द्रविड़ का एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बट वो मिस आउट कर गया था। और इंजी ने 100 मारी थी। इंजी और यूसुफ योहाना की बहुत शानदार पार्टनरशिप हुई थी। यूसुफ योहाना भी शायद उस टाइम पे यूसुफ योहाना था उसका नाम, तो उसने 90 कुछ KF बनाए ने थे। किसका कैच लिया था? Inzi का शोएब या मलिक का, शोएब मलिक, शोएब शोएब मलिक। Shoaib मलिक, Malik का? हाँ, I thought you would ask that question where power bowled. Is that बट the यार over? इसमें नेहरा का क्वेश्चन ये बहुत होना इंटरेस्टिंग चाहिए। करियर रहा है। लाइक नेहरा ने कभी कभी मतलब हरवाया भी है, जैसे 2011 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही कुड नॉट डिफेंड, बट कभी कभी ही हैज बीन द स्टार। Yeah, true. I आई मीन got इंडिया both the बहुत points अच्छा on लेफ्ट this. आर्मर था, बट या ओवरऑल। सो फॉर दिस I got क्वेश्चन both the points. yeah, you get the full point, and Vishnu gets half point. Okay. अंकुर जो सीरीज की बात कर रहा है ना, वो 2004 के बाद वाली सीरीज थी। हाँ, बैक टू बैक बहुत सारे सीरीज हो गए थे उस टाइम पे। हाँ अच्छा, वो इंडिया आए होंगे पाकिस्तान तब लिया होगा फिर उसने, हो सकता है। हाँ सेकंड था वो, मतलब Okay. दूसरी वाली धोनी खेला था ना? इसमें धोनी जिसमें नहीं धोनी था। हीरो बना था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इस वाले में धोनी नहीं था, Hmm. इस वाले में Next, द्रविड़ ही कीपिंग कर रहा था। next इसमें question धोनी, again. परवेज मुशर्रफ ने उसको बोला था कुछ कुछ, वो वाली वो अलग नहीं, सीरीज। हाँ, धोनी का तो वो डेब्यू 2006 वाली, 2006 में हुआ था। हाँ, तब वो डेब्यू किया था 2006 6 में में। वो 2006 में 4-0 समथिंग जीते थे हम लोग। ओके गाइस, 4-1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी 2 पार्ट क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपको याद है तो इंडिया का ओडीआई क्रिकेट में कभी कभी जब बॉल स्विंग और स्विम होता है तो हमने देखा है आवर बैट्समैन स्ट्रगल बिग टाइम, एंड वी हैव हैड वेरी वेरी बैड स्टार्ट्स। चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में हो 2019 में, एंड ऐसे कई स्टार्ट्स हुए हैं। बट सिर्फ एक ही बार ऐसा ओकेजन हुआ है जब इंडिया के मैक्सिमम विकेट्स गिर गए हो 30 रन के अंदर। तो आपको वो नंबर गेस करना है, हाउ मेनी विकेट्स मैक्सिमम हैव इंडिया लॉस्ट अंडर 30 रन्स स्कोर। एंड देन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो ये मैच है उसमें फाइनली रिकवरी हुई थी आफ्टर वी लॉस्ट एक्स नंबर ऑफ विकेट्स अंडर 30 रन्स। तो हु मेड दैट रिकवरी, हु स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी लोअर, नीचे से इस स्कोर के गिरने के बाद। So we were इसमें something, so we were 30 for X, and then we still managed to reach 100 runs score, and someone scored a 50. So who scored a 50, and what is the X? अच्छा, एक हिंट इसमें, इफ एवरीवन अलाउज, व्हाट वाज द फाइनल स्कोर ऑफ इंडिया, अगर वो बता सकते हो तो। 112. अच्छा, If everyone asks, I can give you even more hints. अगर 30 बताना seconds तक- बताना क्या है इसमें, बताना क्या है कितने विकेट गिरे थे? या कितने विकेट गिर गए थे 30 के पहले, एंड देन किसने रिकवरी करी थी 50 स्कोर किया था 50 प्लस। अच्छा, रिकवरी भी बताना है कि किसने करी थी। या रिकवरी किसने करवाई थी। या सो बेसिकली बहुत बेकार स्कोर था 30 फॉर समथिंग, एंड देन वी स्टिल मैनेज टू रीच 112। तो वो किसके 50 के बेसिस पे वी रीच देयर। इफ एवरीवन वांट्स अ हिंट, आई कैन गिव एन हिंट नाउ बिकॉज़ 30 सेकंड्स हो गए। एक हिंट और दे दो विष्णु। Yeah. और अगर ये मैच Yeah. श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, वो भी होम मैच है। होम No मैच है, idea, man. धर्मशाला में है। यस, दैट्स एन एक्स्ट्रा हिंट। दैट इज श्रीलंका करेक्ट। के साथ दिस है, गेम वाज प्लेड इन शायद धर्मशाला, एंड सुरंगा लकमल ने 4 विकेट्स लिए 12 थे। बजा दी। हाँ, या कम ऑन, टाइम फॉर आंसर्स गाइस। दे दिया भाई, आंसर दे दिया। ओके, क्या लिखा है आपने? ओके, श्रेयांश भाई आपका आंसर? No idea, bro. श्रेयांश भाई आपका आंसर नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरा के पास ले जाना बोर्ड को। भाई ये रहा ना आंसर, श्रीलंका धोनी 28 पे 7। और अंकुर? Jahar, wow. Ankur gets partial points. Yes, it was very close, Shreyans. Yes, India were 29 for 7. We were struggling, and yes, Thala as always
50 he made a very good 50 and somehow took यार India पूरा, to लेकिन यार पूरा मिलना चाहिए यार, 28 पे 7 और 29 पे 7 तो भाई हाँ बहुत ही हाँ हाँ क्लोज है पूरा भाई। पूरा मिलेगा पूरा मिलेगा बट धोनी बहुत ही सब अमेजिंग कुछ मैच है। चाहिए। उसका उसका हाइलाइट्स देखा मैंने रिसेंटली। सुरंगा लकमल इंडिया के अगेंस्ट समहाउ अच्छा करता है। लाइक आई डोंट नो इफ ही इज अ गुड बॉलर बट ही इज अ गुड बॉलर अगेंस्ट इंडिया। So he bowled really well and yeah, but somehow India still मॉर्निंग managed एक्चुअली to में ये make क्या, highlights. मॉर्निंग मैच था ये धर्मशाला में एक्चुअली में, तो इंडिया की वो स्विंग में हालत खराब हो गई थी। हाँ, इट वाज अ डे मैच। yeah, We exactly. और lost this धर्मशाला game, में is कभी it? कभी फास्ट बॉलर्स का असिस्टेंस मिलता भी है ना, तो yeah, so Ankur gets half points and Shreyans get full point. And Vishnu, this was match in 2017, तो मुरली कार्तिक उस टाइम पे नहीं था। I was But yeah, thinking there was one where we won. It was against Australia, but then I couldn't remember this game. yeah, चलो नेक्स्ट। yeah. So next is about a high scoring match. So जैसा कि आई थिंक यू गाइस मस्ट नो कि ओडीआई में अभी करंटली दोनों जो हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो इंग्लैंड के हैं। एक उन्होंने अभी रिसेंटली बनाया, नेदरलैंड्स में खेलने गए थे वो, दे मेड 498 रन्स इन दैट 50 ओवर मैच। एंड जो सेकंड हाईएस्ट है वो भी उन्हीं का है, दे मेड 481 रन्स 481 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को धोया उन्होंने एंड दे वन दैट मैच बाय ओवर 200 रन्स। सो माय क्वेश्चन इज हु वर द टू सेंचुरियंस फॉर देम इन दैट 481 मैच? This is question number 5 guys. So मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गेस वर्क कैन हेल्प अगर आंसर नहीं भी पता है तो। ये आंसर पता है? ठीक है, यस या मैंने डाल दिया भाई, देख ले। तेरा दिख नहीं रहा है। हाँ, एक Ryan Besto. Ryan Bairstow, Ryan Bairstow. Hailson Bairstow is the correct answer. क्या बात है, मैच देखा था क्या वो? गजब यार, I श्रेयंस know भाई that का one of the क्या openers. मेमोरी है। तो ये दोनों में से एक था। इसमें शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए एरन फिंच ठीक खेला था जहां तक मुझे याद। एंड आई थिंक इसके बाद ही हेल्स को जस्ट सून आफ्टर दिस मैच उसको ड्रॉप कर दिया था और इतने साल के बाद कमबैक किया हेल्स ने। नहीं, वो ड्रॉप तो उसकी वजह से हुआ था, ड्रग्स वग्स के किसी कांड। हाँ, आई मीन वो तो First फॉर्म की ड्रग्स वजह का, से तो ड्रॉप हुआ नहीं था। then स्टोक्स के साथ वो भी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था ना। By the way, guys, these 5 questions according to me were in the easy category. तो अब थोड़ा medium category के questions आने वाले हैं। Wow. So, yeah. So the next one, are you guys ready for the question number 6? यस It's about India's legend Yuvraj Singh. So Yes. we all know Yuvraj Singh performed brilliantly in the 2011 World Cup. Like you can say, उसके वजह से India World Cup जीती थी। Amazing, like 362 runs, 15 wickets. He performed brilliantly. So my question is, he scored only 1 century in that tournament. उसके 50 बहुत सारे थे, लेकिन 1 century था। तो you have to name that team किसके अगेंस्ट उसका 1 century था। बहुत एंड इजी है। युवराज का एक फाइफर भी था, वो किसके अगेंस्ट था। सो यू हैव टू टेल युवराज ने सेंचुरी किसके अगेंस्ट मारा था, किस टीम के अगेंस्ट, एंड देन फाइफर किस टीम के अगेंस्ट दिया था उस वर्ल्ड कप में। Ten seconds left, guys. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ये टफ नहीं है। अच्छा, क्या आंसर है आपके? वो बहुत दूर है कैमरा। ये I'm very bad, man. वेस्ट इंडीज और आयरलैंड। ओके, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। श्रेयांश भाई अगेन करेक्ट। एंड अंकुर विल गेट पार्शियल पॉइंट्स। 112 बनाए थे। Vishnu, you didn't get it right? या वेस्ट इंडीज के साथ भी एक्चुअली उस टाइम पे रवि रामपाल अच्छे फॉर्म में होता था, सो इट वाज अ गुड इनिंग्स। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सेमीफाइनल में उसने
कुछ 80 और 5 विकेट लिए थे। वैसा ध्यान सेमीफाइनल आ में रहा तो जीरो पे आउट हुआ था। और ये बाय द वे 0 उसने पे आउट 50 भी मारी थी आयरलैंड हाँ वाले मैच में, सो इट वाज अ लाइक अ सेमीफाइनल में तो फर्स्ट बॉल डक गया था, फर्स्ट बॉल डक। ऑस्ट्रेलिया से था ना सेमीफाइनल? नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया। अरे फर्स्ट बॉल डक गया था भाई। इंडिया के 140 वो पे 2 से पाकिस्तान के 140 पे अगेंस्ट 4 हो गए। वाहब रियाज ने आउट किया था आई थिंक। वाह यार, यॉर्कर आई थी सटाक अंदर। वही लोअर फुल टॉस थी, वी वर सरप्राइज्ड कि बोल्ड कैसे हो गया। अंदर But घुसती भी फुल टॉस थी ना, इसलिए हो गया। yeah, इंडिया के लेफ्ट आर्मर का प्रॉब्लम। Anyways, So 8 so minutes left. Yeah. seventh question, guys. So this is about the World Cup we all have forgotten, the 2007 World Cup, that Dan World Cup where India and Pakistan both were, they exited from the group stage itself. So I'm sure this question is in the medium category just because it is about 2007 World Cup. But मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा फनी क्वेश्चन है, दिस इज फॉर द ह्यूमर गाइस. सो इस वर्ल्ड कप के इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं. तो इसमें जो सेकंड हाईएस्ट टेकर और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वर्ल्ड कप में, उन दोनों की शादी एक इंडियन वुमेन के साथ हुई है. अब या तो ये इंडियन क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं या फिर ये फॉरेन क्रिकेटर्स हैं. तो मुझे आपको नाम बताने हैं कि ये दोनों क्रिकेटर्स कौन है. मतलब इंडियन प्लेयर्स ही हो सकते हैं सेकंड थर्ड। या सो ग्लेन मैकग्राथ द लेजेंड, उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए थे इस टूर्नामेंट में 26. एंड जो सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं उन दोनों के नाम बताने हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों की शादी एक इंडियन वुमेन के साथ हुई है. एंड दे बोथ टुक 23 विकेट्स ग्लेन मैकग्राथ के बाद. नेक्स्ट, दिस इज 2007 वर्ल्ड कप का स्टैट्स. I know one, but not मुझे sure भी about एक the ही बताया second. यार। Yeah, can we please have the answers now, guys? करें शो आंसर. सेकंड और Okay. हाईएस्ट बोला ना, शादी का तो नहीं पता, लेकिन शायद ये थे सेकंड हाईएस्ट। Okay, so both Vishnu and Ankur get partial point, and Murli and शॉन yes, टेट. that is the correct answer. Oh, So, टेट and की किससे हुई interestingly, है? guys, Sean Tate ने अपने करियर के 25% विकेट्स इस वर्ल्ड कप में लिए. हाँ मतलब मुझे इसीलिए पता था कि वर्ल्ड कप में उसने विकेट लिए, शादी का नहीं पता मुझे, लेकिन आपने Across- हिंट दे दी थी सेकंड और थर्ड, तो उससे Across तुक्का मारा। फॉर्मेट्स शॉन टेट ने 12 साल के करियर में टोटल 95 विकेट्स लिए, उसमें से 23 इसी वर्ल्ड कप में लिए. ही वाज ब्रिलियंट विद मैकग्राथ. ही एक्चुअली ब्रेटली नहीं खेल रहा था इस वर्ल्ड कप में, सो ही डिड रियली वेल. नहीं बट उसकी शादी इंडियन से हुई है। या इंडियन मॉडल Indian मशरूम सिंगर्स. means Australian, but Indian origin. No, Indian born. They both Oh. are. They had an Indian नहीं, passport. मैक्सवेल खेलता था, टाइम पे नहीं खेलता था. नहीं खेलता था, नहीं नहीं, तो थोड़ा वही at least लग रहा होता है. And by the way, वर्ल्ड कप बहुत बेकार था. Like I just wanted to point you out these stats. आप देख सकते हो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के प्लेयर्स हैं मोस्ट विकेट्स एंड मोस्ट रन्स में. तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप बस दो ही कंट्रीज के लिए अच्छा गया है. एंड इट वाज अ वेरी वियर्ड वर्ल्ड कप. नहीं, क्योंकि या तो स्लो विकेट थे या तो सुपर फास्ट विकेट। या और बॉब वुलमर डाइड, और फाइनल इतना बकवास बारिश वाला. सो नहीं, और पाकिस्तान भी तो आउट हो गया था ना, इंडिया पाकिस्तान दोनों आउट हो गए थे। Yeah, पाकिस्तान same. आयरलैंड से हार के और इंडिया बांग्लादेश से हार के, But दो हाईएस्ट टीआरपी वाली टीम तो आउट ही हो गई। Riyans bhai gets another 1 point. But yeah, everyone gets something here in this मैं question. कल रात भर जग के एक्चुअली मैं तैयारी कर रहा था क्विज की। Okay, so another question from the medium to high tough category. So this one is question number 8, guys. So who is the highest wicket taker in ODI format and is also an active cricketer? तो currently active players में से सबसे ज्यादा highest wickets किसके हैं ODIs में? When you say active, retirement नहीं लिया. हाँ, मतलब he is still playing. मतलब he is not the highest wicket taker in ODI format across all generation, but currently in active cricketers, he has the highest wickets. I can give an okay hint की जरूरत नहीं है. Okay, Vishnu, we have seen your answer.
विष्णु वैसे मैं हिंट देने वाला था बट श्रेयांश भाई दिख नहीं रहा, बहुत दूर है वो। एक्चुअली स्क्रीन शेयर किया तो या ओके। अंकुर भाई व्हाट्स योर आंसर? दिख गया क्या? हाँ दिख गया दिख गया। पता यार नहीं सही है। पता नहीं, आई डोंट नो, मशरफी पता नहीं। मुर्तजा रिटायर हो गया ना मशरफी तो। Shakib Retire is हो the गया। right answer. Shreyansh bhai, I don't know how you do it, man. but like he's वही really वही है जो इतने far. सालों से खेला। मुझे मुझे दो में डाउट था एक्चुअली में, सऊदी, क्योंकि सऊदी के भी 200 कुछ हुए हैं। Yeah. And look how far behind Shakib is in the list. Actually, he's like at number 15 something, but currently active players में yeah he's leading. And unbelievable यार, मुरलीधरन and वसीम ने ODI में भी 500 plus wickets लिए हैं. So they are like. नहीं तो इसमें अभी सेकंड कौन है? सऊदी है ना शायद, या शामी है? I think Saudi third है शायद. I have to check that list. But अश्विन मैंने नहीं है क्या? नहीं अश्विन नहीं होगा, वनडे में तो है ही अश्विन नहीं को अश्विन। वही 2017 के बाद he hasn't played ODI right, so I think उसकी वजह से रह गया, otherwise अश्विन का हो सकता था। क्योंकि यही होंगे ट्रेंट बोल्ट सऊदी, या आपके Yeah. शामी, मोहम्मद शामी हो सकता है उसके स्टार्क पीछे। रह सकता है क्या? स्टार्क ना, स्टार्क भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है। Anyways, we have two more questions, guys. So let's Come on, continue. We do only it. have few minutes left. Yeah. Yeah, do it. Okay, this is a tough one. So, question number 9. There has only been 8 instances of that 10 wickets has been taken by just 2 bowlers in an ODI. ऐसे सिर्फ 8 बार हुआ है ऐसा ODI क्रिकेट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार बोल्ट ने 7 विकेट्स लिए थे एंड हेनरी ने 3 विकेट्स लिए थे 2017 में। एंड सिमिलरली एक बार चामिंडा वास ने जब 8 for 19 लिया था उसका फेमस, तब मुरली ने 2 विकेट लिए थे। तो इसका मतलब बेसिकली जस्ट 2 बॉलर्स वाइप्ड अप द एंटायर साइड। तो क्वेश्चन इज, इंडिया के लिए सिर्फ ऐसा एक ही बार हुआ है, एंड हु इज दैट पेयर? एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये 2014 में हुआ था एंड इट वाज इन बांग्लादेश। At least one name. ये वन नेम तो श्योर ही है, मैंने भी 2 डाला नेम्स है के one 1 points, 1 नेम्स का हाफ पॉइंट। या so these 2 bowlers took 10 wickets, they shared 10 wickets among themselves. एक ही याद है भाई। दूसरा मतलब गैस ही मार रहा हूँ, पता नहीं। गेस ही मार रहा हूँ मैं भी। Oh, you also know the one? वन तो एवरीबॉडी नोस, इट्स अ हिस्टोरिक मैच। 104 Okay. इंडिया ऑल आउट हो गया था, बांग्लादेश 58। Yeah, both gets a half point. ये रहा यार, गैस मार देते हैं तुक्के में। oh no, 50 seconds बचे actually meeting time में। क्या है Yeah. आपका आंसर? Actually that's correct. And मोहित Oh. शर्मा, yes. मोहित शर्मा कैसे याद है यार आपको? वो इंडिया का ओपनिंग बॉलर हुआ करता था 1-2 साल के लिए। अरे तुक्का ही था, क्योंकि वो मैच मुझे याद आ गया ना, 58 ऑल आउट हो गई थी, बारिश का मैच था और बिनी की बॉल क्या स्विंग 4 हो रन गई थी, if you remember. हाँ, यार 4 आप रन तो पे 6 कमाल हो विकेट यार, लिए थे। seriously I couldn't Yeah, just know you're it. I amazing, thought bro. Raina was the one who bowled maybe नहीं off वो spin and स्विंग थी ना, took 4 रन पे 6 विकेट लिए थे शायद इसने, Yeah. स्टुअर्ट बिन्नी। 30 seconds बचे guys. Should I ask the last question? Yeah, हाँ, ask it. Okay. इंडिया के लिए बेस्ट इकोनॉमिकल स्पेल। तो guys, यही है ना आंसर? that's correct. क्या था? Bro, hide your answer. So question was, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल 10 ओवर स्पेल कौन से बॉलर ने डाला है? Oh. How do you know this one? मैं कौन 30 सा seconds प्लेयर है क्या? फिर से बोलो। Yeah, मतलब सिर्फ रन्स कम दिए, विकेट्स से मतलब नहीं, राइट? yeah. Minimum runs. क्या प्लेयर का नाम देना है कि? Yeah, player का नाम। Bro, hide your answer. You got it. Shreyans already got the answer. So this bowler gave only 6 runs in 10 overs. हाँ, मैच वाज इन नायरोबी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। Yes. हाँ, करेक्ट। I was so happy that we beaten that team. Finally. 117 बनाए थे।
117 ऑल आउट कर दिया था इंडिया ने। Amazing, yeah, that's it. Yes, Sunil Joshi. It was an amazing spell. Hats off to the bowling. Seriously, brilliant effort. और सोचा नहीं था सुनील जोशी ने इतना अच्छा स्पेल डाला है. Like मुझे personally आंसर बेसिकली है. क्या इसका आंसर तो वो है स्टुअर्ट बिन्नी है, 4 रन पे 6 विकेट। हाँ, Yeah. most economical, but बट 10 ओवर बट में उसने 10 रन भी complete दिया 10 था। overs, पूरे 10 हाँ, overs में. कंप्लीट स्पेल में सुनील जोशी, यस 10 ओवर 6। देखो मैंने पूरा ही लिख दिया था क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही। मेरे सारा Yeah. आंसर मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। And नायरोबी, he's साउथ also अफ्रीका। part of another record that less than 10 runs and taken a fifer. तो उसमें से दो ही नाम है, सुनील जोशी and Muralidharan did it in 2002. But Sunil Joshi was the first person to do it. अच्छा, और And- इस टूर्नामेंट की एक खास बात रही थी कि इंडिया को एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट नया प्लेयर मिला था, जो कि एक इंजीनियर था, शायद IITian था, Wow. विजय भारद्वाज। Oh yeah, yeah. Vijay Bhargava series में खेला था, correct. Yeah. And it was the first time we हम लोग एक साउथ अफ्रीका टीम को बीट किए थे शायद, that Yeah, strong man. South Africa South team. African team used to be so strong, yeah. And वो कभी very rarely they used to tour शारजा, but वहाँ पे भी आके हरा देते थे. यार कहीं पे भी जाओ यार, their middle order they have the Simcox for the Yeah. spin and McCallum for the seam. Yeah, and मैकमिलन, Hensik मैकमिलन, Rooney है, Very Hensik good Rooney भी था. all-rounders. Yeah. ब्रायन The middle मैकमिलन। order. कैलिस भी आ चुका था, I think 96, 97 से कैलिस भी आ गया था. Man, Yeah. I was checking So what is the Cal's final stats. score, Pratik? Yes. Of course, man, you smashed it again. यस Shreyans bhai is the winner. Let me calculate the marks now. But brilliant performance, bro. भाई इसीलिए तो मैं IIT में नहीं जा पाया यार, ये क्रिकेट ने मार दी जिंदगी मेरी। और वो जो 2004 की सीरीज की आप बात कर रहे थे ना, उसमें हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे। तो मेरे फादर को मैंने बोला था कि पापा, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज 16 साल बाद हो रही है, बोर्ड तो हर साल आएंगे। अरे मैं एक साल बड़ा हूँ आपसे, मैं 10th मेरा 2003 में था, वर्ल्ड कप के टाइम में. अच्छा, नहीं हमारा I was studying in CBSE, so क्या हुआ था कि वर्ल्ड कप का फाइनल्स प्रीवियस दिन मेरे फिनिश हो गए थे एग्जाम्स. 23 फेब को था वर्ल्ड कप का फाइनल। या फेब को या मार्च को तो शायद, पता नहीं मेरे को फेब क्यों याद आ रहा है, शायद फेब था। फेब पता की नहीं। था यार, मार्च, शायद मार्च में एग्जाम्स होते थे हमें. हाँ तो फिर मार्च होगा, पता नहीं Guys, क्यों मुझे फेब याद है। कैलकुलेट मतलब करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. मेरी तरफ से वो भी प्रीव्यू कर दो ना, इंडिया बांग्लादेश का सीरीज भी थोड़ा. क्या लगता है, बांग्लादेश फिर से जीत सकती है क्या? अभी पहले ODI शुरू हो रहे हैं, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कल से। कल ओडीआई. ODI में नहीं यार, मतलब इंडिया ही जीतेगी आई फील, बट क्योंकि सूर्या केएल राहुल इज की बैक। कमी महसूस हो सकती है. नहीं, केएल राहुल इज बैक एंड इट्स बांग्लादेश, सो केएल राहुल विल स्कोर at least 200 runs in 3 matches. It's again bilateral series. So आप ट्वीट रिट्वीट करने वाले हो? नहीं अभी रिट्वीट किया, मैं वो प्रेशर वाले मैच में करता हूँ, ये तो नॉन प्रेशर मैच है, तो इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर केएल राहुल. ही विल गो हैप्पी आफ्टर दिस टूर. ही इज टेकिंग एन ऑफ फॉर मैरिज, तो सुनील शेट्टी विल बी हैप्पी. माय son-in-law is coming with a man of the series performance, match performance. So yeah, but almost full strength squad है basically ये वाला with respect to batting. नहीं बट Yeah. स्पिनर में यू डोंट हैव कुलदीप चहल, दोनों नहीं है. शाहबाज को ट्राई करा एक्चुअली उन्होंने, Shahbaz नहीं, came batting- because Jadeja was still not fit, na? Yeah. So that is the thing. Who are we having the new? Do we have any newcomers? We have मिडिल ऑर्डर में भी न्यू कमर्स है ना. एक रजत पाटीदार है, और फाइनली उसको चांस मिला यार, त्रिपाठी को chance मिला. राहुल त्रिपाठी, हाँ. सिराज खेलेगा, पंत खेलेगा. सैमसन नहीं है ना, सैमसन नहीं है ना. नहीं. अक्षर पटेल खेलेगा और इमरान खेलेगा शायद.
वॉशिंगटन सुंदर और अक्सर खेलेंगे शायद, मुझे लगता है बॉलिंग स्पिनिंग। उमरान फाइनल स्कोर क्या रहा प्रतीक? श्रेयांश के कितने पॉइंट है? 8.75 8.75 ironically फर्स्ट क्वेश्चन में उनको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में उनको पार्शियल पॉइंट्स मिले थे, उसके बाद 8 इन अ रो। कितना 8.75? या अब मेरे और विष्णु के कितने हैं? मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने बहुत बेकार तरह से लिखे हैं। जब तक थोड़ा सा वो पाकिस्तान इंग्लैंड भी प्रीव्यू कर दो यार, पाकिस्तान क्या हार सकती है मैच? Yeah, I आज think का the only day team which can 8:30 lose this match is England. कैसे भाई, कैसे? मतलब पाकिस्तान का पता है ना, लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया जब आई थी तो वन ऑफ द इनिंग्स में इतने अच्छे पिच पे भी दे गॉट 140 ऑल आउट, तो उनका कभी भी कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल वजह से वो हार सकते हैं यार। नहीं, वो थका देंगे ना इंग्लैंड को बेसिकली। इंग्लैंड ने तो 100 ओवर में 657 रन बना लिए, कोई थका ही नहीं। पाकिस्तान थका देगी यार, ऑलरेडी कितने 50-60 ओवर बॉलिंग करवा चुके हैं उनसे, और मतलब 259 बन चुके हैं। बाबर है, रिजवान है, अजहर अली भी बहुत जबरदस्त टेस्ट प्लेयर है। बिल्कुल या तो पकड़ने क्या में। डे 4 तक पाकिस्तान खेलती जाए स्लो करके their भी, main और batsman अजहर अली और बाबर आजम खेल रहे हैं, 2 विकेट दे रहे हैं अभी। तो आई थिंक इनके 6 सेंचुरीज हो सकती है। 5 सेंचुरियां तो ये भी मार लेंगे। अजहर अली मारेगा, बाबर मारेगा, रिजवान मारेगा। पता नहीं, लास्ट 2 डेज में कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो अंकुर के 4 पॉइंट्स हैं, आई एम स्टिल कैलकुलेटिंग विष्णुज। आई विल बी लास्ट आई गेस। आई थिंक आपके 4.25 होंगे या 4.5 है। नहीं यार, मैं तो बहुत ही घटिया खेला था। तो श्रेयांश I के was सब telling him I'm not that good with the guess quiz. Still it would be interesting बोल के आ गया मैं। नहीं, नॉलेज ही बढ़िया है। 3.5 Vishnu, so yeah, you have to ask them if round करके we can declare you second winner or not. No, it's Tied second. क्या फायदा, अभी 3 ही थे But ना, yeah, तो huge gap it's between the fine. first and you guys. So sorry श्रेयांश के साथ। I think rest of the लोगों को टीम हो जाना चाहिए, तब क्लोज हो जाता थोड़ा। तो भी नहीं जीतते। 7. लास्ट क्विज में श्रेयांश भाई का 16.5 था और सेकंड में मेरे और कुणाल के 12 and 6 थे। True man. अमिताभ चलो नेक्स्ट वीक मैं कराता हूँ क्विज। आप बनाओगे क्विज? हाँ मैं बनाता हूँ, बट मतलब ये क्रिकेट स्पेसिफिक होना जरूरी है या जनरल स्पोर्ट्स क्विज भी हो सकता है? I mean, hopefully, if you put more questions on cricket, then yes. क्रिकेट स्पेसिफिक ठीक है। Yeah. Yeah, let's next do this मतलब again. चलो, thank you guys. चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। चलो Thanks, bye bye. Bye guys, thanks.